Okay, so infrastructure before not independence, after independence, the government was solely responsible for the development of a country, for the development of the infrastructure. लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर NEP स्टार्ट हुआ इन द ईयर 1991 और भी काफी इंपॉर्टेंस जब लगने लगी कि गवर्नमेंट अकेला इन सबको डेवलप नहीं कर पा रही है, इतना बड़ा कंट्री है और हर जगह डेवलपमेंट की जरूरत है, तो धीरे धीरे ये सर्विसेज जो है प्राइवेट सेक्टर को भी डेलीगेट करी जाने लगी। ओके, और ज्यादातर लोग हमारे कहाँ रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो इसलिए ये जरूरी है कि गांव में भी टेक्निकल प्रोग्रेस होनी चाहिए। लेकिन आज भी बहुत से लोग गांव में क्या करते हैं, बायोफ्यूल्स यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, उनके पास में गैस सिलेंडर्स, सैनिटेशन फैसिलिटीज ये सब कुछ नहीं है। ओके, और लोगों को अब कई जगह पर बहुत लंबा डिस्टेंस पैदल ही ट्रेवल करना पड़ता है फ्यूल के लिए, वाटर के लिए, अपनी छोटी मोटी जरूरतों के लिए। और लगभग अकॉर्डिंग टू 2001, अब तो खैर इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत हो चुका है, 2001 before this 20 years ago only 56% of the rural household had electricity connection, लेकिन आज के समय पे बहुत बढ़ चुका है ये खैर electricity connection. And according to 2001 also, the tap water is available only 24,000. Rest they have to go to the wells and tanks and ponds to fetch the water. Okay, and sanitation facilities were available for only 20%. But now this condition has improved, but still a major, much of the work has to be done to improve the infrastructure, and that is taken over by the private sector also. So India invests only 34% of its GDP in infrastructure, whereas China is much more. Just see over here, China spends 46%, it invests 46% on the infrastructure, whereas India it is only 34%. Okay, Pakistan it is 15%. Okay, Singapore 35%. So better the infrastructure facilities, better is the development of the country. Access to the safe drinking water resources. According to 2015, China has 96%, India has 94%. Okay, Singapore 100%. All the houses are having the safe drinking water. Improved sanitation 77, China, and India 40, too poor. Okay, Pakistan is much ahead, 64 sanitation facilities. Mobile subscribers, China 93, India 79. आज तो बहुत बढ़ गए होंगे, because after that only the smartphone has become popular when the internet facilities has become cheaper. Power generation 6015, and here it is 1423. Okay, so this some of the infrastructure in other countries, the same water resource, improved sanitation, mobile subscribers. So this data can be asked also, and this data, by giving the data, some of the analysis could also be asked from you. Analyze this data. So in this way you have to analyze that which is better and which is not better, and why, what are the reasons behind this. Now the next topic is energy. Why energy is taken. So as we have taken the infrastructure into two parts, first is the economic infrastructure, other is a social infrastructure. Means which support the economic activities, refers to economic infrastructure. Which supports the human capital, that is known as the social infrastructure. So in the economic infrastructure, we have taken only one, that is energy, which is the main component for the economic infrastructure. Because if energy is not there, energy can be electricity, it can be the fuels. Okay, so energy can be in any of the ways. So in the economic infrastructure we have taken as energy, and in the social infrastructure we will take the health. Saiba Ansari, please switch off your mic, mute yourself. So first of all, we are taking with the economic infrastructure, that is energy. So energy, it is a very important input for the today's time, even for the production process and also for the consumption process. Okay? Consumption activities, कुछ भी आपने consume करना है, okay? घर में ही हमें कितना ज्यादा जरूरत है एनर्जी की, इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी काम तो नहीं होता, यहाँ तक कि अब तो खाना भी नहीं बनता बिना इलेक्ट्रिसिटी के, कपड़े नहीं धुलेंगे, कुछ भी काम भी, I'm so used to for that. So every production, consumption, all the activities, energy is very important.
And there is a positive relationship also between the economic growth and demand for energy. जितना ज्यादा economic growth होगा, जितना ज्यादा देश तरक्की करेगा, उतना ही ज्यादा energy की requirement होगी, या ये कहिए जितना energy develop होगी उतना ही ज्यादा देश की economic growth होगी. और in India energy is used in large scale in agriculture. Agriculture में सबसे ज्यादा use होती है ये हमारी एनर्जी, क्योंकि प्रोडक्शन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, फार्म इक्विपमेंट्स, इरिगेशन, इन सब के लिए यूज होती है. और एनर्जी घर में किसके लिए चाहिए? खाना बनाने के लिए, हाउस होल्ड लाइटिंग, हीटिंग, washing, everything we need the energy. So now discussing the impact of the energy, the types of the energy. Before this, just mark it. Considering the vast potential of energy savings and benefits of energy efficiency, the Government of India enacted the Energy Conservation Act in 2001. Just mark it. Energy Conservation Act was enacted in 2001. So energy is of two types, and commercial energy and the non-commercial energy. Okay. So commercial energy refers to those sources of energy which command a price and the users have to pay a price for them. Commercial और non-commercial. Commercial वो होती है, energy होती है जिसका कुछ दाम होता है और लोगों को उसके लिए पैसा पे करना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं commercial energy. For example, coal, petroleum, electricity, ये सब क्या होती है? Commercial energy. Commerce का मतलब है जहाँ पैसे की बात हो रही है, commerce का मतलब है जहाँ पैसे की बात हो रही है. तो कमर्शियल एनर्जी वो एनर्जी हुई जिसके की हमें दाम देना पड़ता है, हमें उसकी पेमेंट करनी पड़ती है, उसको हम बोलते हैं कमर्शियल एनर्जी. और ये एग्जॉस्टिबल होती है, जनरली जैसे हम यूज करते हैं खत्म होती है ये, सिर्फ हाइड्रो पावर को छोड़ करके, क्योंकि पानी तो यूज हो रहा है बिजली के लिए, फिर वही यूज हो जा रहा है, उसमें बार बार आपको नई पानी की जरूरत तो नहीं है ना. तो लेकिन अगर हम फ्यूल यूज कर रहे हैं, हम पेट्रोल यूज कर रहे हैं, तो वो एग्जॉस्ट हो रहा है. नेक्स्ट इज नॉन कमर्शियल. नॉन कमर्शियल एनर्जी वो होती है जिसका कि लगभग प्राइस नहीं होता है, ऑलमोस्ट होता भी है तो बहुत कम होता है. जैसे फायरवुड, जंगल से लोग लकड़ी लेके आते हैं, शाम को तुमने देखा होगा, तुम गाड़ी से आ रहे होगे तो लोग सिरों पे बांध करके लकड़ी लेकर के आते हैं ताकि खाना बनाएं. एग्रीकल्चरल वेस्ट के और ड्राइड डंग, जो काउ डंग होता है, उससे भी खाना बनाते हैं. नॉन कमर्शियल जनरली रिसोर्सेज जनरली रिन्यूएबल, हम उसे दोबारा भी यूज कर सकते हैं और दे आर जनरली अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट है. More than 60% of Indian household depend on traditional source of energy for meeting the regular cooking. क्योंकि ये सस्ता भी पड़ता है तो ज्यादातर 60% Indian household, mainly the rural household, use these sources for the production of the energy. Now, next is commercial and the non-commercial. इसका यहाँ पे भी differentiation दिया हुआ है. After this, energy can also be classified into two categories according to the source from which it is derived. एनर्जी को फिर हम आगे भी दो सोर्सेज में डिवाइड कर सकते हैं. जनरली ये कमर्शियल एनर्जी है जिसको हम डिवाइड करते हैं, लिखा नहीं, बट इट इज द पार्ट्स ऑफ द कमर्शियल एनर्जी. तो कमर्शियल एनर्जी को दो तरीके हैं. पहला है, दो और पार्ट्स है इसके, पहला है कन्वेंशनल, दूसरा है नॉन कन्वेंशनल. वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करिए मीनिंग. कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो होता है जिसमें कि जो कि बहुत लंबे समय से यूज हो रहा है और जिसको हम स्टोर भी कर सकते हैं कि बहुत लंबे टाइम से, पता नहीं कितने कई 100 सालों से हम उसे यूज कर रहे हैं, और जिसको हम स्टोर भी कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. जैसे कि कोल एंड ऑयल, ये नॉन रिन्यूएबल है, एक बार यूज हो गया दोबारा यूज नहीं होगा. कि कोल है, ऑयल एक बार खत्म हो गया तो हो गया. इवन टुडे मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड मेक यूज ऑफ कोल एंड ऑयल इंडस्ट्री. आज भी बहुत सी इंडस्ट्रीज इलेक्ट्रिसिटी के अलावा इनको यूज करती हैं. और जो कमर्शियल और नॉन कमर्शियल है, ये दोनों कन्वेंशनल सोर्स है. आगे आता है नॉन कन्वेंशनल. नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो एनर्जी है जो कि कुछ समय से ही एग्जिस्टेंस में आई है ना, कुछ डिकेड से ही, 4-5 डिकेड से एग्जिस्टेंस में तो बहुत समय से थी, लेकिन हमें उसका यूज कुछ समय से ही पता चला है, उसको हम बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी. सो इट इज सोलर एनर्जी, एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोगैस एंड टाइडल पावर. एग्जिस्ट तो बहुत समय से कर रही है ना सोलर एनर्जी, कि हमें पता नहीं था कि हम इसे सोलर कुकर तक की तरह भी यूज कर सकते हैं, हीटर्स की तरह भी यूज कर सकते हैं. और आने वाले समय में इसमें बहुत एक्सप्लोरेशन होना है, और हो सकता है कि आने वाले, अब तो इवन सोलर प्लांट्स लगते हैं, सरकार उसके लिए इवन सब्सिडीज भी देती है ताकि जो लोग घर में सोलर प्लांट लगाए, और ये दूसरी इलेक्ट्रिसिटी है, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आती है, ये कम से कम यूज हो.
तो सोलर एनर्जी से अब देखिए हमारे भारत में 365 डेज अगर हैं पूरे साल के, तो एटलीस्ट एक बार 350 डेज तो धूप रहती ही रहती है। तो अगर हम उसे यूज करें, उसको हम कन्वर्ट कर दें इलेक्ट्रिसिटी में और फिर उसे हम यूज करें, तो हम कितनी एनर्जी बचा सकते हैं। दैट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इवन उसके जो जितने प्लांट लगता है उसका 3 लाख और 5 लाख का, वो आप हमारा खर्चा तो 2-3 साल में ही पूरा हो जाना है। तो थोड़ा सा इसकी मतलब इनिशियल चार्जेस ज्यादा है, लेकिन उसके बाद में इसमें हमारा खर्चा कम पड़ता है और ये रिन्यूएबल होती है। बीइंग अ ट्रॉपिकल कंट्री, इंडिया के पास में ये एनर्जी बहुत ज्यादा है ना, तो यहाँ पे सन भी बहुत अवेलेबल रहता है, विंड ना कोस्टल एरियाज में कितनी ज्यादा रहती है, जियोथर्मल, ज्योग्राफिकल थर्मल जो होती है, बायोगैस और टाइडल पावर, टाइड से जो एनर्जी निकलती है, ये इनएग्जॉस्टिबल भी होती है और रिन्यूएबल भी होती है। हाँ, अभी जो है इसको प्रोसेस करने में और स्टोर करने में समय है, खर्चा ज्यादा लगता है, लेकिन अब अगर इसके हम और रिसर्च इसके ऊपर करेंगे तो हम जल्दी ही इसके ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च करके इसको हम आम जनता के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या है? कन्वेंशनल लिमिटेड है, नॉन कन्वेंशनल अबंडेंट है। यू कैन इजिली ऑब्जर्व सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी कितनी अबंडेंट है। ये नॉन रिन्यूएबल है, दिस इज रिन्यूएबल। कन्वेंशनल पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर, दे आर पॉल्यूशन फ्री। सोलर एनर्जी से कोई पॉल्यूशन नहीं है। और कन्वेंशनल सोर्सेज आर एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ एनर्जी, ये महंगे हैं और चीपर है, हाँ, लेकिन इनिशियल कॉस्ट इनकी ज्यादा है। ठीक, कन्वेंशनल की इनिशियल कॉस्ट थोड़ी कम रहती है, लेकिन बाद के फिर महंगे रहते हैं। नेक्स्ट, under this also given primary and the secondary source. Primary source or direct source of energy are gifts of nature that do not need any transformation. Primary source वो होते हैं, मार्क कर लीजिए इसको, जो कि डायरेक्टली गिफ्ट ऑफ नेचर अवेलेबल है और इसके ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। कोल है, रिफाइन होकर यूज हो रहा है, पेट्रोलियम है, गैस है। और सेकेंडरी वो होते हैं जिनको कि हमें चेंज करना पड़ता है, इनका ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है प्राइमरी से सेकेंडरी में। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी है, पानी से बन रही है, थर्मल पावर से बन रही है, न्यूक्लियर पावर से बन रही है, चेंज करना पड़ रहा है ना, कितने प्लांट्स लगे हुए हैं इसके लिए। ठीक है, कोल है और सॉरी हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये तो ये सब क्या कहलाएगा? सेकेंडरी सोर्स। नेक्स्ट इज द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ एनर्जी इन इंडिया। ये आपके कुछ पैटर्न दिए हुए हैं, इसके अलावा आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं टेबल में, टेबल ज्यादा सही रहता है, इजी रहता है। हाउस होल्ड यूज करते थे, ये बस में आप जो लर्न करेंगे वो करेंगे 53, 54 और 2015, 14, 15। जो पहला साल दे रखा है वो, जो लास्ट में दे रखा है वो। हाउस होल्ड पहले यूज करते थे 10, अब करते 23, क्योंकि अब गाँव में भी इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, बहुत घरों में बिजली है। पहले बिजली घरों में कम हुआ करती थी, कई कई ऐसे भी होते थे जहाँ बिजली नहीं भी होती थी। एग्रीकल्चर पहले था 1%, अब कितना हो गया है? 18%। इंडस्ट्रीज 40, 44, ट्रांसपोर्ट 44 और अब है सिर्फ 2, क्योंकि अब और सोर्सेज बहुत आ चुके हैं। ठीक है, और मतलब कोल से हट करके इलेक्ट्रिक पे जा रहे हैं, और अदर्स 5 और 13। ठीक, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का सबसे ज्यादा शेयर है टोटल कंजम्पशन में एनर्जी के, और एग्रीकल्चर में भी कम है, अब कम है, क्योंकि लोग अभी भी कई गांव में ट्रेडिशनल मेथड्स यूज करते हैं एनर्जी के लिए। द शेयर ऑफ ऑयल एंड गैस द हाईएस्ट अमंग ऑल कमर्शियल एनर्जी कंजम्पशन, ऑयल एंड गैस का सबसे हाईएस्ट है। ओके, तो ये हुआ हमारा कंजम्पशन पैटर्न। आपको पूरा का पूरा डेटा पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ एनर्जी इन इंडिया, एनी हाउ इट कैन बी आस्क्ड। नाउ हम सबसे पहले पढ़ेंगे पावर, इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी एनर्जी है मेन, उसको हम पढ़ेंगे सबसे पहले। So power or electricity is a critical component of infrastructure which is often identified with progress in the modern civilization. Okay, electricity एक बहुत critical component है infrastructure का, जो कि modern civilization से identified है, यानी कि अगर बिजली नहीं है तो यानी कि ये outdated है। Okay, in order to attain economic development, power is required in every step. हर एक step में आपको power की जरूरत है, हर एक सेक्टर के डेवलपमेंट में जरूरत है, देश की जीडीपी के लिए जरूरत है। सो पावर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। पावर कैसे बनती है, सोर्सेस कैसे कौन कौन से हैं? पहला है थर्मल पावर, दूसरा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर और तीसरा है न्यूक्लियर। When the power is generated out of coal, oil and natural gas, इनको हीट करके जब बिजली बनाई जाती है, कोल को, ऑयल को, नेचुरल गैस को, स्टील को, उनको हीट करके जो बिजली बनाई जाती है उसको बोलते हैं थर्मल पावर। इस समय पर हम जो सब जनरली थर्मल पावर यूज करते हैं, 67% है इसका अकाउंट। दूसरा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जबकि यहाँ पर फास्ट फ्लोइंग रिवर के फ्लो से
या डैम से, हाई डैम से जब बिजली बनाई जाती है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ये चीपेस्ट है तीनों में से, थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर में सबसे ज्यादा सस्ता है ये, क्योंकि पानी का यूज है, पानी तो हमारे देश में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है जनरली हर एक कंट्री में। और फिर आता है न्यूक्लियर और एटॉमिक पावर। When power is generated from the radioactive elements like uranium, thorium and plutonium, जब हम इन सोर्सेस से एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, न्यूक्लियर पावर समझ में पता ही होगा आप सबको कितनी खतरनाक चीज है, और एक बेन भी है और बून भी है। अगर हम गलत तरीके से यूज करते हैं तो वो बेन बन जाता है, अभिशाप, और बून जब हम उसको प्रॉपर तरीके से यूज करते हैं, अच्छे यूज के लिए हम उसे लेके आते हैं, तो वो बन जाता है बून। जब हम उसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट से बिजली प्रोड्यूस करते हैं तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर। जनरली इंडिया में जो दो ही सोर्सेस चलते हैं, हाइडर और ये थर्मल और हाइड्रो, ओके। और सो दैट इज, तो ये सोर्सेस आपने लर्न करने हैं। जी, ये बेटा एक परसेंटेज भी दे रखा है, इसमें मार्क करिए। थर्मल पावर है 67, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर 13.6, न्यूक्लियर है 2.10 और न्यू एंड रिन्यूएबल है 17.3। रिन्यूएबल न्यू वो हुए सोलर, विंड, टाइडल। ओके, ये इसी का एक्सप्लेनेशन दे रखा है। अब देखिए, अब ये खाली रेफरेंस के लिए है,